عن وجه الحسين علیہ السلام بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلندتر صلوات سب سے پہلے بارگاہ توحید میں، بارگاہ رسالت اور بارگاہ ولایت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ اس فرش ولا و وضع پہ جو محسن بھائی کے گھر پہ آج بچھایا گیا ہے، جناب سیدہ ہم سب کی توفیق جتنے بھی یہ میرے رونق کے فرش ولا و وضع میرے سامنے چہرے موجود ہیں، امام زمانہ آپ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک یہ چہرے سلامت رہے، ہم سب کے میرے مولا حاجت شریعہ اپنی بارگاہ میں، ہم سب کا پڑھنا یہ قلیل عبادت یہ تیرے بچے کے قصے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اپنی بارگاہ میں ہماری یہ قلیل سی عبادت کو اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرما، ہماری نسلوں میں یہ کام عطا فرما، یہ عزاداری اسی طرح چلتی رہے اور ہمارے پلے صرف ہمیں حسین کے سوا کوئی بات نہیں، ہمیں میرے مالک اسی میں اسی طرح دنیا اور آخرت میں اس کا بس ایک شعر دو آپ کو سنا کے انشاءاللہ اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں میں اس کا جواز پیش کر رہا ہوں، اگر آپ بجائے اجازت دیں فضائل ایک نعرہ ایسا بلند کریں کہ فضائل بھائی زیارات کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو مجلسوں میں غم شہ منانے آتے ہیں، جو مجلسوں میں بہت بڑا دعویٰ ہے، دلیل دوسرے شعر میں دیکھیے گا کہ جو مجلسوں میں غم شہ منانے آتے ہیں، کرنے کیا آتے ہیں؟ جو مجلسوں میں غم شہ منانے آتے ہیں وہ اپنے سوئے مقدر جگانے آتے ہیں، جو مجلسوں میں غم شہ منانے آتے ہیں وہ اپنا سوئے مقدر جگانے آتے ہیں، اور بروز حشر ملے گی انہیں جزا اس کی، بروز حشر ملے گی انہیں جزا ان کی اس کی جو پرسہ دینے کو آنسو بہانے آتے ہیں، جو پرسہ دینے کو آنسو بہانے آتے ہیں، اور انہی کو فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہے، انہی کو فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہے، بدن پہ اپنے جو ماتم سجانے آتے ہیں، یہ بڑی وضاحت کیا کہ انہی کو فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں، جو پرسہ دینے آتے ہیں، جو پرسہ دینے یہ ماتم کے نشان حیدر ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے ہاں کوئی نشان نہیں ہے، قبر میں بھی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ چمکیں گے، قبر میں بھی ماتم کے نشان روشن رہے گی۔ آج کیونکہ جناب حضرت زید الشہید کے شہادت کا دن تھا تو اس کے حوالے سے کہ ولولا جرت قیادت حضرت زید الشہید، جذبہ ولولا جرت قیادت حضرت زید الشہید، طاقت و عزت شجاعت حضرت زید الشہید، طاقت و عزت شجاعت حضرت زید الشہید، اور پرچم عزم حسینی ہاتھ میں تھامے ہوئے، پرچم عزم حسینی ہاتھ میں تھامے ہوئے، اللہ اللہ استقامت حضرت زید بالکل اس حوالے سے کیونکہ حق بنتا تھا کہ اچھا اب آنکھوں پہ کلام ہے، کس کس کی آنکھیں کیا کیا ہے اور کس کس کی آنکھوں میں کیا مولا نے عطا کیا ہے، زائرین سے خاص طور سے آپ سے دعا لینے کے لیے کہ ولائے عشق و مودت میں تر میری آنکھیں، ولائے عشق و مودت میں تر میری آنکھیں، کہ چوم آئی ہے مولا کا در میری کہ چوم آئی ہے مولا کا در میری آنکھیں، ولائے عشق و مودت میں تر میری آنکھیں، کہ چوم آئی ہے مولا کا در میری آنکھیں، اور نجف سے کرب و بلا شام سے مدینہ تک، نجف سے کرب و بلا شام سے مدینہ تک، یہ کر رہی ہے مسلسل سفر میری آنکھیں، یہ کر رہی ہے مسلسل سفر، دیکھیے گا کہ بے شک یہ میرے مولا کا کرم ہے۔
अभी जनाब सैयदा की ज़ियारत मैंने की है बदरुल बकी में, खुदा की कसम छः आइमा कराम भी और मौला इमाम हुज़ूर पाक की ज़ियारत से शरफ़याब हुआ। खुदा की कसम वहाँ जितना गिरिया वहाँ है जन्नतुल बकी में अभी भी कैद है जनाब सैयदा। खुदा की कसम ये मतलब हम तो बयान ही नहीं कर पा रहे कि किस तरह कैद है। कमरे भी कैद में है और लोग खड़े हैं बाहर, कब्र की ज़ियारत नहीं करने देते। खुदा उन पे लानत करे कि चूम आई है मौला का दर मेरी आंखें और अज़ा का फर्श सजाया है अपनी पलकों पर। अज़ा का फर्श सजाया है अपनी पलकों पर, अज़ा का फर्श सजाया है अपनी पलकों पर, विलाए इश्क अली का है घर मेरी आंखें। और शेर देखिएगा कि तवाफ़े परचमे अब्बास बावफा के लिए, बड़ा खास शेर है। तवाफ़े परचमे अब्बास बावफा के लिए जहाँ जहाँ भी अलम है उधर उधर वाक़, जहाँ जहाँ भी अलम है उधर उधर कि चूम आई है मौला का दर मेरी आंखें और मेरे ये अश्क अज़ा सैयदा का सदका है, मेरे ये अश्क अज़ा सैयदा का सदका है। नमाज इसलिए वो है मोतबर मेरी आंखें। आले मोहम्मद का जिक्र है तो जो आले मोहम्मद का कलाम है, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो आप यहाँ जिक्र अली की महफिल में हैं, शाद शेर देखिएगा कि अली के जिक्र की जो महफिलों में रहता है, अली के जिक्र की जो महफिलों में रहता है, खुदा गवाह वही जन्नतों में रहता है। खुदा गवाह वही जन्नतों में रहता है। शेर देखिएगा कि जी हमें आप हद से बढ़ा देते हैं, हद से बढ़ा देते हैं अपना शायद भाई जो हद, पहले तो ये बताया कि हद है क्या, हमारी जहन में तो समा नहीं सकता। शेर देखिएगा भाई कि खुदा गवाह वही जन्नतों में रहता है और अली के इश्क की कोई भी हद नहीं होती, अली के इश्क की कोई भी हद नहीं होती। अली का इश्क कहाँ सरहदों में रहता है। अली के इश्क की बहुत मेहरबानी, अली के इश्क की कोई भी हद नहीं होती, अली का इश्क कहाँ सरहदों में रहता है। और इसके हैदर में लाजिम है फना हो, जियो जियो इसके हैदर में लाजिम है फना हो जाओ, इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई। अच्छा जी, इसमें एक लफ्ज आ रहा है असल, असल कहते हैं शहद को, आप इस्तेमाल देखिएगा। अली का इश्क कहाँ सरहदों में रहता है, अली का इश्क कहाँ सरहदों में रहता है और मैं विलाए अली हम कशीद करते हैं। सुनिए, मैं विलाए अली हम कशीद करते हैं, असल विला का हमारी रगों में रहता है। हमारी रगों में रहता है। और आपकी मिजाज का शेर देखिएगा कि अली से बोग्ज़ हो शजरा खबीस हो जिसका, अली से बोग्ज़ हो शजरा खबीस हो जिसका, अली से बोग्ज़ हो शजरा खबीस हो जिसका, घिरा हुआ वो फकत लानतों में रहता है, घिरा हुआ वो फकत लानतों में रहता है। और कभी वो कर नहीं सकते यजीद की बख्शिश, हो ही नहीं सकता। कहा जाता है हो सकता है अल्लाह बख्श दे, भाई वो बेनियाज है, वो बेकी वो बेअसूल नहीं है। आप देखिएगा कि अली से बुग़्ज़ हो शजरा खबीस हो जिसका, घिरा हुआ वो फकत लानतों में रहता है और कभी वो कर नहीं सकते यजीद की बैअत, कभी वो कर नहीं सकते यजीद की बैअत के ला हुसैन का जिनकी रगों में रहता है, कभी कर नहीं सकते यजीद की बैअत। और यकीन आए तो फुतरस को देख लो जाकर, यकीन आए तो फुतरस को देख लो जाकर,
शिफा का नूर जो उसके परों में रहता है, शिफा का नूर जो उसके परों में रहता है। और ये हुर पे साकिए कौसर का फैज तो देखो, ये हुर पे साकिए कौसर का फैज तो देखो। उठाए जामे वाला मैं कशों में रहता है, उठाए जामे वाला मैं कशों में रहता है। और जो मौला अब्बास का अलम उठाते हैं उसमें शेर देखिएगा शायद भाई कि अलम में हजरत अब्बास का उठाता हूँ, अलम में हजरत अब्बास का उठाता हूँ। वफा का जोर मेरे बाजुओं में रहता है, वफा का जोर मेरे बाजुओं में रहता है। और अली वली की नवाजिश हुई नवाजिश पर, अली वली की नवाजिश हुई नवाजिश पर, वो महरो माह की ताबानियों में रहता है, महरो माह की ताबानियों में रहता है। और ये शाम गरीबा है, क़यामत की घड़ी, सूखे हुए कासे हैं, मश्क पड़ी है। और असगर कहीं अकबर कहीं कासिम का है लाशा, और सामने अब्बास की भी लाश पड़ी। और है बिनते अली दश्त में निगरान इमामत, जलते हुए खैमों के जो नजदीक खड़ी। जनाब सकीना जब मश्क लेके आई है ना अब्बास के पास, दो अल्फाज हैं, सिर्फ ये कहा कि मौला मुझे पानी चाहिए, मेरा असगर खत्म हो जाए। मौला हुसैन ने जब देखा ना कि मश्क सकीना मौला अब्बास को दे रही है, तो मौला हुसैन ने जनाब सकीना से कहा, तेरा 6 माह का भाई है, मेरा कड़िया जवान है। मौला अब्बास जब मश्क लेके चले हैं ना, और उसके बाद जब तीर लगे हैं मश्क पे, तो मौला अब्बास ने मश्क को दांतों में पकड़ा, एक मौसू कलम हुआ, दूसरा कलम हुआ, उसके बाद घोड़े पे चल के किसी तरह पानी चला जाए खैमे के अंदर। पीछे से एक जो है जालिम ने गुर्ज मारा, और उसके बाद जो तीर थे सब के सब मशकीज़े सकीना में लगे हैं, पानी सारा बह गया। मौला अब्बास जीन से जमीन पर आए हैं और सर के बार आए हैं। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो हमारे जद पर जो जमीन जीन से जमीन पर ऐसा आए कि जिसके दोनों बाजू नहीं थे। बस आप जहन में रखिए कि मौला अब्बास का सर मौजूद है नेज़े पे, 72 के 72 सर नेज़े पर है, और एक ही रस्सी से गुलू बंधे हुए हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बेपर्दा जवानियां मौजूद है, बेपर्दा हमारी जो माएँ बहनें मौजूद हैं। कुपियों के सामने सज्जाद है। सज्जाद ने एक दफा मौला अब्बास से कहा, काश तूने और मैंने अपनी जंग बदल ली होती। तुम्हारा घोड़े से गिरना और है, असगर का मचलना और है, अकबर का जिगर पे खाना और है, कासिम के टुकड़े हो जाना और है। कदम कदम पे सज्जाद